امریکا کی ونیزویلا کی باؤنڈریز میں جانا اور کچھ ہی گھنٹوں میں وہاں کے صدر ان کی فیملی کو نیو یارک میں پہنچا دینا اور پھر عدالت کے سامنے پیش کرنا اور ایک انٹرنیشنل پولیس کی طرح بہیو کرنا۔ جو یونائٹڈ نیشنز چارٹر بنایا گیا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد میں، اس کے تحت یہ جو کچھ وینزویلا میں ہوا ہے یہ اس چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اب ٹریڈ کے اوپر میرے خیال میں معاہدہ ہو جائے گا امریکہ اور چین کا۔ روس کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے یوکرین کے بارے میں، وہ صرف یوکرین کے بارے میں نہیں ہے، وہ پوری یورپین آرکیٹیکچر کے بارے میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ڈیبیٹ اور آج ہم ایک بہت اہم واقعہ ڈسکس کریں گے جو ونیزویلا میں ہوا۔ کیا یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے؟ امریکہ کی ونیزویلا کی باؤنڈریز میں جانا اور کچھ ہی گھنٹوں میں وہاں کے صدر ان کی فیملی کو نیو یارک میں پہنچا دینا اور پھر عدالت کے سامنے پیش کرنا اور ایک انٹرنیشنل پولیس کی طرح بہیو کرنا۔ کیا اس طرح کے واقعات اب ایک نیو نارمل بن سکتے ہیں، یا یہ ایک ریئل ورلڈ کا ایک ایسا پرسپیکٹو ہے جو اب جس کا ہمیں شاید ہم سب کو مقابلہ کرنا پڑے؟ اور ایسی صورت میں یونائٹڈ نیشنز کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ کیونکہ پچھلی 80 دہائیوں سے یونائٹڈ نیشن ایک ایسی باڈی تھی، ایک ایسی کلیکٹیو فورس تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ سیلف ڈیفenس کے طور پہ تو آپ کسی پہ اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے آرگنائزیشنز کے ہوتے ہوئے امریکہ جیسی سپر پاورز جو اہم معاملات میں ویٹو کی طاقت اختیار کرتے ہیں، اور ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تھیٹر ہے ویٹوز کا جو کہ لگا رہتا ہے، ایسے ہی واقعات کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، فارمر پاکستان پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ٹو یو این۔ بہت شکریہ سر، آپ پروگرام میں جوائن کریں۔ سر، ہاؤ ڈو یو سی دس کائنڈ آف انسیڈنٹ؟ اور یونائٹڈ نیشن کا چارٹر کیا ابھی بھی فنکشنل ہے اس طرح کے واقعات کے بعد، اور یہ خاموشی واٹ ڈز دیٹ مین ٹو یو ان 2026؟ جی، دیکھیے یہ جو یونائٹڈ نیشنز چارٹر بنایا گیا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد میں، اس کے تحت تو یہ جو کچھ وینزویلا میں ہوا ہے یہ اس چارٹر کی خلاف ورزی ہے، انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے۔ اس قسم کی جو وائلیشنز، چارٹر کی جو وائلیشنز ہیں، وہ کس عرصے سے بہت ایکسیلریٹ ہو گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا جو غازہ کی جو جنگ ہوئی ہے، جس میں اسرائیل نے بالکل ایک جینوسائیڈل جنگ کی ہے، اور اس کی جو خلاف ورزی ہے اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، کیونکہ سیکیورٹی کونسل میں اس کو امریکہ نے بچایا۔ اسی طرح سے یوکرین کی جنگ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں بھی ایک انٹرنیشنل لاء کی کچھ خلاف ورزی بھی ہوئی ہے وہاں۔ تو اب یہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے یہ ٹوٹ رہا ہے، اور یہ امریکہ کا جو یہ لیٹسٹ انٹرونشن وینزویلا میں ہوئی ہے، یہ اس کی ثبوت ہے کہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی بہت امپینٹی سے ہو رہی ہے۔ اور یہ ایک ریورژن ہے ٹو دا پری یو این چارٹر ورلڈ، جہاں اسفیئرز آف انفلوئنس ہوتی ہیں، اور جو طاقتور ملک ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے آپ پہ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ جہاں بھی چاہیں وہاں انٹروین کریں۔ تو یہ جو ریولوشن آ رہی ہے، یہ واپس ایک ریورشن ٹو دی ایج آف امپیریلزم، اور جس میں اسفیئرز آف انفلوئنس بنائے جائیں گے، اور جو چھوٹے ملک ہیں ان کی جو پروٹیکشن جو انٹرنیشنل لاء ان کو دیتا تھا، یو این چارٹر جو ان کو پروٹیکشن دیتی تھی، وہ ابھی موجود نہیں ہے۔ اور ان کی پروٹیکشن جو ہے، ہر ملک کی پروٹیکشن صرف اپنی طاقت پر ہے، سر، کتنی آگے بڑھنے سے طاقت۔ پہلے دو باتوں کی وضاحت کیجیے گا، کیونکہ آپ نے بہت کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ اٹ از اے کائنڈ آف امپیریلزم، اور اب ایک ہمیں کلیئر فیئرز نظر آئیں گے انفلوئنس کے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ کیا امریکہ کے علاوہ اور ممالک بھی
इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस होंगे, वो कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। और फिर दूसरा सवाल ये कि जो बॉडीज बनी हुई है यूएन की तरह की और दूसरी बॉडीज हैं, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? क्या वो क्लियर पोजीशन इख्तियार कर देंगी कि चूंकि अमेरिका का इंटरेस्ट है तो हम आपका कुछ नहीं कर सकते? वो क्या पोजीशन इख्तियार करेंगे? जी देखें, अगर अमेरिका ये कहता है कि जी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा इख्तियार है और सिर्फ हमारा इख्तियार है, और जैसे सेक्रेटरी रूबियो साहब ने कहा है कि चीन का क्या मतलब है कि वो वेनेजुएला का तेल ले, ये तो हम यहाँ रहते हैं और हमारा हक है। अ, तो इसी तरह से अगर अमेरिका अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता है कि जी अमेरिका जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, वो वहाँ हमारा इन्फ्लुएंस होगा, हमारा इख्तियार होगा, और जो एक्स्ट्रा रीजनल ताकतें हैं वो यहाँ वहाँ नहीं आ सकती हैं। तो इसी तरह से फिर रूस कहेगा कि जी हमारा जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो एशिया में जो उनका है, ईस्टर्न यूरोप में उनका इन्फ्लुएंस है, यूक्रेन के ऊपर जो वो कहते हैं कि ये यूक्रेन तो हमारा हमारा हिस्सा था रूस का। तो फिर ये बाय द सेम आर्ग्यूमेंट रशिया के पास भी वही रैशनल आ सकता है कि हम जो भी हमारा जो रशियन एम्पायर था या सोवियत एम्पायर था, वहाँ हमारा इख्तियार था, तो हम वहाँ फिर अपना इन्फ्लुएंस करेंगे और बाहर के मुल्कों को नहीं आने देंगे। तो अब तक चीन ने इसके ऊपर कोई अपना पोजीशन नहीं इख्तियार की है, पर बाय द सेम लॉजिक फिर एशिया में फिर चाइना का फेयर इन्फ्लुएंस बन जाएगा। तो ये लॉजिक अगर अमेरिका यहाँ जो पेश उन्होंने की है, ये लॉजिक अगर उसकी एक्सटेंशन करें तो फिर क्लियर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाएंगी, दुनिया बढ़ जाएगी। वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यूरोपियन हेमिस्फीयर और एशियन हेमिस्फीयर। तो आगे बढ़ने से पहले कि किस किस रीजन में कौन अपना इन्फ्लुएंस बना सकता है, ओबीएल के इंसिडेंट पे तब भी तो अमेरिकन ने यूनिलैटरली कार्रवाई की और बाद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया। तो सर वो तो, उसका ताल्लुक तो एशिया से नहीं है, वो फिर भी दूसरी जगह पे आता है और कार्रवाई करके चला जाता है। तो अमेरिका के लिए भी तो कोई कदर नहीं है कहीं भी जाके किसी को भी उठा के ले जाए। जी, ये ये अमेरिका का ऑब्वियसली वो समझते हैं अपने आप को सब में बड़ी ताकत। और जो ओबीएल के साथ 212 में हुआ था, वो अब दुनिया बदल गई है। एशिया में अमेरिका अभी डायरेक्टली वो समझते हैं कि एशिया में जिस तरह से उन्होंने इराक, अफगानिस्तान वगैरह में इंटरवीन किया था, वो समझते हैं कि हमने वहाँ इंटरवीन नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्टली अपने जो उनके दोस्त यार हैं, और इसराइल जैसा है, वो उसको इस्तेमाल करेंगे मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस रखने के लिए। पर मेरे ख्याल में वहाँ उनकी रिकग्निशन है कि हमारी जो कोर इंटरेस्ट रीजन्स हैं वो अमेरिका, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। यूरोप में भी उन्होंने अपने एलाइज से कहा है, जैसे वैसे नेटो एलाइज से कहा है अमेरिका ने, ट्रम्प साहब ने, कि अपने आप को संभालें आप। अमेरिका ने जो आपको सिक्योरिटी अम्ब्रेला दिया था, वो आप मुफ्त में अपनी सिक्योरिटी बना रहे थे। अब आप खुद करें, अपनी एक्सपेंसेस बढ़ाएं डिफेंस पर, और अपने आप को बचाएं, अमेरिका पर डिपेंड ना करें। तो ये मेरे ख्याल में अमेरिकन जो एटलीस्ट जो ट्रम्प साहब की जो थिंकिंग है वो मुख्तलिफ है। और वो समझते हैं कि हमने जो हमारे कोर इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। कोर इंटरेस्ट में जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, पर दूसरे जो एरियाज हैं जहाँ रिसोर्सेज हैं, जैसे मिडल ईस्ट में ऑयल रिसोर्सेज हैं, अफ्रीका में क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज, उस पे कंपटीशन होगी। ये एरियाज में कंपटीशन होगी। पर जो कोर एरियाज हैं रूस की, चीन की और अमेरिका की, वो उस पे मेरे ख्याल में वो समझेंगे कि यहाँ स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं। और जो एरियाज हैं जहाँ किसकी अभी तक पूरी हेजेमनी नहीं है, वहाँ कंपटीशन होगा।
अच्छा मुन्नी साहब, ये बताइएगा कि क्या यूएन जैसी बॉडीज इसलिए भी नाकाम है क्योंकि उनके लॉ में ये ऑप्शन है कि परमानेंट मेंबर्स को मेंटेन किया जा सकता है बिकॉज ऑफ रूल्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन, जो कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है, इसी की वजह से वो क्वेश्चनेबल नहीं बनाते अमेरिका को? क्या आपको लगता है कि यूएन अपने रूल्स में ममालिक के प्रेशर की वजह से अपने रूल्स में चेंजेस लेके आएगा? क्या यही वजह है कि वो अमेरिका को क्वेश्चन नहीं करते, या इसके अलावा भी वजूहत? ये देखें, जब यूएन चार्टर बना था और अक़वाम मुत्तहिदा की जो चार्टर जब अडॉप्ट हुआ था, उसमें एक बड़ी शर्त सोवियत यूनियन ने लगाई थी। वो ये थी कि हमारा वीटो पावर होना चाहिए। और जो जो विक्टर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, जो पांच मुल्क थे, वो उन्होंने कहा कि ये पांचों मुल्क के पास वीटो पावर होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ चीज़ भी हुई तो हमारी फिर जंग हो जाएगी। तो इसलिए जो कुछ अक़वाम मुत्तहिदा करेगी, सलामती काउंसिल फैसला करेगा, वो हम सबको मंजूर होना चाहिए। और जब हम सबको मंजूर होगा तो वो इम्प्लीमेंट होगा। अब जो अभी इख्तलाफ जो हो गए हैं, जियो पोलिटिकल कंपटीशन इन्हीं के दरमियान हो गया है। ये पांच जो वीटो पावर्स हैं, चीन है, रूस है और अमेरिका है, ये तीन बड़ी ताकतें अभी हैं, इनके आपस में कंपटीशन और इख्तलाफ है। तो इन हालात में सलामती काउंसिल फैसला नहीं कर सकती। ना उसकी जो जिस तरह से बनाई गई है, वो स्ट्रक्चरली उन्होंने इसी तरह से बनाई है कि अगर जब तक के मुआहदा नहीं होगा इन पांच में, तो सलामती काउंसिल काम नहीं कर सकती है। तो अपनी रूल्स वो चेंज चेंज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूल्स को चेंज करने के लिए भी वीटो का वीटो का सामना तो करना फिर पड़ेगा। बिल्कुल मुनीर साहब, तो ठीक है, ये समझ आता है कि रूल्स चेंज नहीं हो सकेंगे, लेकिन फिर को एग्जिस्ट कैसे करेंगे? एक तरफ यूएस इंटरनेशनल पुलिसिंग कर रहा है, दूसरी तरफ यूएन भी अपने आप को इंटरनेशनल पुलिस कहता है, तो हाउ वुड दे को एग्जिस्ट? ये कोएग्जिस्टेंस का तो यही है। देखें, इस वक्त भी अमेरिका और चीन के मुज़ाकरात चल रहे हैं। बहुत एक्सटेंसिव मुज़ाकरात हैं, जिस पे ट्रेड पर बातचीत हो रही है, टेक्नोलॉजी पे बातचीत हो रही है, और सिक्योरिटी भी बातचीत हो रही है। अब ट्रेड के ऊपर मेरे ख्याल में मुआहदा हो जाएगा अमेरिका और चीन का। टेक्नोलॉजी पे कंपटीशन चलेगी। जहाँ तक के सिक्योरिटी और मिलिट्री इश्यूज हैं, उसके ऊपर बहुत सारे इख्तलाफ हैं, तो वहाँ वहाँ कॉन्फ्रंटेशन भी हो सकती है। पर ये जो मुज़ाकरात हैं, इनका मतलब यही है कि उन्होंने अपनी जो रेड लाइंस हैं वो डिमार्केट होगी, कि आपने ये नहीं करना है हमारे खिलाफ, और हम आपके खिलाफ ये नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो मुआहदे हैं वो हो सकते हैं। रूस के साथ जो बातचीत चल रही है यूक्रेन के बारे में, वो सिर्फ यूक्रेन के बारे में नहीं है, वो पूरी यूरोपियन आर्किटेक्चर के बारे में है, कि आगे बढ़ के नेटो क्या कर सकता है और रूस क्या करेगा, और यूक्रेन में क्या फैसला होगा, टू डिमार्केट द स्फीयर्स ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। मुनीर तो साहब, ये एक और सवाल ले लीजिए कि अमेरिका ने कहा कि नार्को टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ये सारी कार्रवाई की गई। तो सवाल ये कि अगर अमेरिका ने ही नार्को टेररिस्ट को पकड़ना है और इस तरह की कार्रवाइयों में भी ममालिक अगर डायरेक्टली मुलव्वस होंगे, तो फिर जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है वो कैसे मेंटेन रहेगा ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज का जो क्लेम करती हैं? क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि ये जो भी किया गया है वेनेजुएला के मफाद में किया गया है, वो ये कह रहे हैं। तो how would other countries and bodies differentiate कि something is against international law or according to international law or for the safety of a community, whatever? जी देखें, जो इंटरनेशनल लॉ तो एक तरफ हो गया। नार्को टेररिज्म का जो इन्होंने एक्सक्यूज दी है, ये सिर्फ एक्सक्यूज थी, एक बहाना था इंटरवीन करने के लिए, कि नार्को टेररिज्म क्या होता है, किसने डिफाइन तो नहीं किया है। ना टेररिज्म को डिफाइन किया है,
लीव अलोन नार्को टेररिज्म होता क्या है, ये किस, कहाँ कहाँ भी इसकी डेफिनेशन नहीं है, ना ये माना गया है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है नार्को टेररिज्म। वो टेररिज्म के साथ नारकोटिक्स ड्रग्स को उन्होंने शामिल कर दिया, और उसको एक एक्सक्यूज बनाया है इंटरवीन करने के लिए। इंटरवीन करने का क्या मकसद था? मकसद था तेल, वेनेजुएला का तेल पे कब्जा करना था। और वो अभी कह रहे हैं कि हमने कर लिया है, और हम जो वेनेजुएला की जो एक्टिंग प्रेसिडेंट, उससे उन्होंने कुछ अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि आपका तेल हमें बेचेंगे, आप चीन को नहीं बेचेंगे आप, और हम इसको प्रोसेस करेंगे, हम बताएंगे आपको किस तरह से ये तेल को बेचना है और इससे क्या करना है। तो नार्को टेररिज्म तो सिर्फ एक एक्सक्यूज था, एक्सक्यूज। तो मुनीर जो साहब, बड़ी ये तो आपने ताकत बता होती है दिया वो कि यूएन ओवरसाइट अगर मुतासिर होती है तो उसमें उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, और वो सुपर पावर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़े। लेकिन जो जेनेवा कन्वेंशंस हैं वो तो स्पेसिफिकली नार्को इश्यूज के साथ डील भी करती हैं। उसमें उनकी तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया, उनको भी तो इन्वॉल्व किया जा सकता था। जी इन्वॉल्व किसने करना था? जिनीवा कन्वेंशंस जो हैं, जिनीवा कन्वेंशंस तो ह्यूमैनिटेरियन कन्वेंशंस की अगर आप जिक्र कर रही हैं, वो तो कन्वेंशंस इन द स्टेट ऑफ वॉर, कन्वेंशंस इन पीस टाइम, क्या करना है। पर जिनीवा कन्वेंशन की जो खिलाफ वर्जी जो हो रही है, इसराइल ने जो कुछ किया है गाजा में, वो तो जेनोसाइड कन्वेंशन, जो सब में सख्त कन्वेंशन है, वो जेनोसाइड कन्वेंशन है, उसकी खिलाफ वर्जी की है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस बना है, वहाँ से फैसले आए हैं, पर उसके उसके ऊपर अमल किसने करना है, किस तरह से इन्फोर्स करेंगे आप कि आईसीजे की जो फैसले हैं, जनरल असेंबली ने उसको एंडोर्स किया है, पर वो फैसले इम्प्लीमेंट करने के लिए सलामती काउंसिल पे कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। वहाँ एक एग्रीमेंट जो हुआ है सलामती काउंसिल में, जो रेजोल्यूशन 2803 अभी अडॉप्ट हुआ है, वो ट्रम्प पीस प्लान पे हुआ है। वो उस पीस प्लान में कंप्लीट डाइवर्जन फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ, और जो पिछले फैसले थे सलामती काउंसिल की ऑन पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन वगैरह वगैरह, उनको सिर्फ एक तरफ करके उन्होंने जो ट्रम्प का पीस प्लान था उसको इंडोर्स किया है। उस पे अग्रीमेंट हो सका, बाकी चीज़ों पे नहीं हो सका। तो जो इंटरनेशनल लॉ को किस, इंटरनेशनल लॉ तो अपनी जगह पर है, पर उसको इन्फोर्स कौन करेगा? इन्फोर्स अगर सलामती काउंसिल कर सकती है चैप्टर 7 में, पर उसके लिए वो पांच ताकत जो हैं, वीटो पावर्स हैं, उनको सबको अग्री करना होगा। ठीक। तो अगर ये सब हम इन्फोर्स, कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। दो अहम सवाल है इसमें, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान ने अपनी टर्म्स तो सिक्योरिटी काउंसिल को हमेशा हर मामले में पहुंचाई है, लेकिन इस रीजन में भी क्या खुदा न खास्ता इसी तरह की कार्रवाइयां न्यू लीगल स्टैंडर्ड बन सकती हैं? हम अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि जब आपने कहा कि अमेरिका ये कर सकता है, वो समझता है कि वो जवाबदेह नहीं है, तो हम अपने आप को इससे कैसे दूर रख सकते हैं ऐसे मामला से? ये देखिए हमारे लिए और बाकी जो दूसरे ममालिक हैं, उन सब के लिए जो लास्ट रिसोर्ट है, जो तरीका है अपने आप को डिफेंड करने का, वो है ताकत, पावर। पाकिस्तान ने लास्ट रिसोर्ट पर, आप देखें हिंदुस्तान ने भी एक इरेशनल किस्म की हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं मानी, और यूनिलैटरली हमारे खिलाफ उन्होंने हमला किया। वो भी इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी, बिल्कुल फ्लेग्रेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ की थी। तो पाकिस्तान के ऊपर क्या चारा था? पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में एक मीटिंग करवाई, पर वहां से कोई फैसला नहीं निकला। हमारी जो हमने अपने आप को कैसे बचाया? बचाया क्योंकि हमारे पास अस्करी ताकत थी, जिसकी वजह से हमने हिंदुस्तान को जवाब दिया। और उससे उससे भी ज्यादा हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को ये एहसास है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर ताकत है, और पाकिस्तान के पास जो कुवत है,
اس سے اس قسم کی انٹرونشن نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف. تو الٹیمیٹ ڈیفenس جو ہے وہ ہے اپنی طاقت. اور پاکستان بائی دا گریس آف گاڈ ہمارے پاس یہ قوت ہے which poses the major deterrent against اور aggression اور against منیر صاحب، Pakistan. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ریسنٹلی یہ بھی رپورٹس آ رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مزید سیکیورٹی ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں، تو پاکستان سیکیورٹی پرووائڈر کی طرح ابھر رہا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا ان دا ریجن، اور اس روشنی میں آپ ان معاہدوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، اس قسم کی جو یہ امریکہ نے جو ٹرمز بنائی ہیں نا، سیکیورٹی پرووائڈر، یہ مس لیڈنگ ہے. سیکیورٹی، ایک جو ملک ہے وہ اپنی آپ کی سیکیورٹی کے علاوہ کوئی سیکیورٹی پرووائڈر نہیں ہوتا. ہم نے جو معاہدہ کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ وہ ہمارے حق میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اور سعودی عرب کی اگر ڈیفنس اگریمنٹ ہوتی ہے تو وی کین کنٹریبیوٹ ٹو سعودی سیکیورٹی اینڈ سعودی عربیہ کین کنٹریبیوٹ ٹو پاکستانی سیکیورٹی. یہ میوچل سیکیورٹی پرووائڈرز ہوں گے ہمارے ڈیفنس پیکٹ کے تحت. تو اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ. سعودی عربیہ از اے فائنینشلی اسٹرانگ کنٹری. پاکستان از ملیٹریلی اسٹرانگ کنٹری. اور یہ کمپلیمنٹیرٹیز ہیں دونوں ملک میں. ہم ایک دوسرے کو بہت مدد کر سکتے ہیں، اور ڈیفنس میں، اکنامک اسٹیبلائزیشن میں، پوری خطے کی ریجنل سیکیورٹی میں ہم ایک دوسرے کی بہت مدد کر سکتے ہیں. تو یہ کمپلیمنٹیرٹی ہے، ایک دوسرے کو ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. بہت شکریہ ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، ہم اس کانورسیشن میں جوائن کر رہے تھے. اور جو سویرین ریئلزم کی بات ہے، یہ صرف ایک ٹرمینالوجی نہیں ہے، اٹ از این ایکچوئل بریک ڈاؤن آف گلوبل لیگل فریم ورک، اور اس کے لیے پاکستان بھی تیار ہے اور آگے تیار بھی رہنا چاہیے. اور وہ صرف اسی بنیاد پہ ہم رہ سکتے ہیں جب ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ میں کلیئر رہیں، جو کہ ہم ہیں، اور ہم سیکیورٹی وائز جو ماڈرن سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھیں. بہت شکریہ.